Good morning, good afternoon, and good evening, प्यारे बच्चों. Today we will be discussing about elastic collision in two dimension. Hope you all have understood elastic collision in two dimension very well. अच्छे से समझ में आ गया है ना? Now the things we will be applying over here, the key points which we will be applying over here to study about elastic collision in two dimension are nearly same. Okay, and this situation is a bit different. बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, रेस्ट ऑल इज सेम. आप लोगों ने कैरम खेला है ना? एज आई टोल्ड यू, कैरम में जिस तरह से कॉइन्स का मूवमेंट होता है, द सेम थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर. लेट्स गो अहेड टू स्टडी इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन. सी, मैंने आपको कैरम का एग्जांपल दिया था. दिस इज वन कॉइन मूविंग विद वेलोसिटी u1, strikes another coin moving with velocity u2. Both collide together elastically. Okay, and after collision, one is moving this way with velocity v1 and another is moving this way with velocity v2. एक बहुत जनरलाइज सा सिचुएशन में तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? कैरम में ऐसा ही होता है ना. वन कॉइन, ओके, अनदर कॉइन हिट करता है, उसको कोलाइड करते हैं, एक इधर और एक इधर. फाइन. तो दिस इज द सिचुएशन, ओके, ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन. अगर सेम स्ट्रेट लाइन में आफ्टर कोलिजन चले जाते तो कोलिजन इन वन डायमेंशन होता है, एज अर्लियर वी हैव स्टडी. ओके, नाउ वन इज गोइंग दिस वे, अनदर इज गोइंग दिस वे, तो हमने इसको कह दिया कोलिजन इन टू डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन in plane. Okay, now अब specifically अगर हम बात करें, this is your mass m1 going with velocity u1, mass m2 going with velocity u2, both colliding together, mass m1 moving with velocity v1, making an angle theta with the initial line of motion, and the mass m2 moves angle phi. Okay, mass m2 moves angle phi with the initial line of action and moves with velocity v2. ठीक, this is the situation. Okay, now how to go ahead with this particular situation? देखो, collision is elastic. Yes, collision is elastic. When the collision is elastic, just think what all things are conserved. आराम से pause कर दो and think of the very first thing which your brain will reply is linear momentum and kinetic energy in the situation must be conserved, because when the collision is elastic, linear momentum and kinetic energy, they are always conserved, as already we have discussed. ठीक, तो इस सिचुएशन को स्टडी करने के लिए we will be applying these two conservations. Fine, let's go ahead. Now, so applying conservation of kinetic energy. Kinetic energy is a scalar quantity, you know it well. So direction, देखो यहां से ये सीधा इस तरह से चले जा रहे थे, this is going this way, this is going this way. Kinetic energy as is a scalar quantity, तो डायरेक्शन जो है वो kinetic energy सिनेरियो को अफेक्ट नहीं करेगा.
Before collision and after collision, the kinetic energy will remain same and will depend on the speed. Okay, and will depend on the speeds, respective speeds. Fine. So applying conservation of kinetic energy. Now, kinetic energy before collision has to be equal to kinetic energy after collision. यही सिचुएशन है. काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन देखते हैं. चलो पहले बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 u1 स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी. तो सेकंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 स्क्वायर. अब काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का कोई लिंक नहीं है. तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 square. And as the total kinetic energy is conserved, therefore kinetic energy before collision and kinetic energy after collision both should be equal. ठीक, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. फाइन. नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. ठीक, तो अगर ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है तो अब थोड़ा सा डायरेक्शन का भी इसमें डेफिनेशन दे दें हम. ठीक है, तो सपोज दिस इज योर ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन पे इस डायरेक्शन में इज योर एक्स एक्सिस एंड इन दिस डायरेक्शन इज योर वाई एक्सिस. मीन ये जो कोलिजन हो रहा है, दिस कोलिजन इज टेकिंग प्लेस इन विच प्लेन. कौन से प्लेन में? दिस मोशन, दिस कोलिजन ऑफ द बॉडी इज हैपनिंग इन एक्स वाई प्लेन. ये मोशन करते करते जो बॉडीज कोलाइड कर रही है ना, एक्स वाई प्लेन के अंदर सारा वट एवर इज हैपनिंग दैट इज हैपनिंग इन एक्स वाई प्लेन. ठीक है, तो अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं सिचुएशन के ऊपर. ठीक, नाउ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करने के लिए हमें डायरेक्शंस का थोड़ा सा हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शंस का. ठीक है, ओके, एज आई टोल्ड यू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अब बिफोर कोलिजन तो एवरीथिंग इज हैपनिंग अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम ओके बिफोर कोलिजन विल बी अलोंग एक्स एक्सिस ओनली. ठीक है, लेकिन जब हम आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी है, वाई एक्सिस के अलोंग भी है. समथिंग लाइक दिस v1. So v1 will be having a component along this axis. v1 makes an angle theta. Component of velocity along this particular axis will be v1 cos theta. It's okay. Along y-axis also this v1 will be placing a component, and that will be v1 sin theta. ठीक. Another component, another velocity is v2. This v2 will place one of its component along x-axis. That is v2 cos phi. v2 जो है x-axis के साथ एंगल phi बना रहा है. And another component will be downside, and it will be v2 sin of phi. ठीक है, अब अप्लाई करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. चलो, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग जाना पड़ेगा. तो अलोंग एक्स एक्सिस फर्स्ट, देन वी विल बी अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, बिफोर कोलिजन इज m1
u1 x एक्सिस के अलॉन्ग है, m2 u2. दिस मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑल्सो इज अलॉन्ग x एक्सिस. तो अगर हम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन की बात करें, दैट विल बी अलॉन्ग x एक्सिस और दोनों का डायरेक्ट सम. ओके, नाउ फाइनल मोमेंटम मीन लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलॉन्ग x एक्सिस. ठीक है, कितना होगा? बॉडी m1 के लिए, m1 मास के लिए क्या होगा? m1 मास का वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस इज v1 cos थीटा. सो इट विल बी m1 v1 cos ऑफ थीटा. सेकेंड बॉडी, सेकेंड मास का m2 is coming this way, so its component of velocity along x axis will be v2 cos phi. So it will be m2 v2 cos phi, दोनों x axis के along. तो टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन along x axis इतना हो गया. नाउ कंजर्वेशन क्या कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन along x axis should be equal to linear momentum after collision along x axis. ठीक है बेटा, पता चला? Now along y axis. Now writing conservation of linear momentum along y axis. y axis के along conservation of linear momentum लिखने के लिए go back to the situation. Situation कह रही है initially एवरीथिंग इज अलॉन्ग x एक्सिस, तो y एक्सिस के अलॉन्ग इनका इफेक्ट कितना होगा? 0. तो बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग y एक्सिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस है, y के इफेक्ट 0, x के अलॉन्ग है, y के इफेक्ट 0. तो y एक्सिस के अलॉन्ग बिफोर कोलिजन नो लीनियर मोमेंटम इज एग्जिस्टिंग. सो अलॉन्ग y एक्सिस 0 plus 0. It's okay. Now after collision देखते हैं कितना लीनियर मोमेंटम है. ठीक, नाउ इस v1 वेलोसिटी का कंपोनेंट इज अपसाइड v1 sin थीटा. अब वेलोसिटी का कंपोनेंट है तो अपसाइड पॉजिटिव ले लेते हैं, तो डाउन साइड हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो y कंपोनेंट हमारे पास v1 का मिल गया, v1 sin थीटा. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम होगा, ओके, for this v1 component along y axis will be कितना होगा? m1 मास के कॉरस्पॉन्डिंग है, और वेलोसिटी कितना था? v1 sin ऑफ थीटा. वेलोसिटी पॉजिटिव क्योंकि अपसाइड था. नाउ सेकंड बॉडी का वेलोसिटी डाउन साइड है, वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, और लीनियर मोमेंटम कॉरस्पॉन्डिंगली कितना बन जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है ना? तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, m2 v2 साइन ऑफ फाई विद अ नेगेटिव साइन. ओके, तो फाइनली जो बन रहा है कहानी, 0 इज इक्वल टू m1 v1 साइन ऑफ थीटा माइनस m2 v2 साइन ऑफ फाई. इट्स ओके. अब इस इक्वेशन को जो अलोंग एक्स एक्सिस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला इक्वेशन है, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2, एंड ये जो अलोंग वाई एक्सिस है इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दो. नाउ कंसंट्रेट इन व्हाट ऑल इज टू बी कैलकुलेटेड. आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज निकालनी है हमें. पहली बात, वेलोसिटीज मैंने कहा निकालनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा, तो वेलोसिटीज कौन कौन सी है? v1 एंड v2. बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज हमें पता है u1 एंड u2, ओके, और हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ v1 एंड v2. फाइन, ठीक है. अनदर थिंग विच वी नीड टू कैलकुलेट इन द सिचुएशन इज ये जो एंगल्स हैं, एंगल्स, कितने एंगल पे ये बॉडी फर्स्ट चला जा रहा है, कितना एंगल बनाते हुए इनिशियल डायरेक्शन के साथ ये बॉडी 2 चला जा रहा है, मीन थीटा एंड फाई. कितने वेरिएबल्स कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं? 4, v1 v2 थीटा एंड फाई. इन द सिचुएशन v1 v2 थीटा एंड फाई वेरिएबल्स आर टू बी कैलकुलेटेड. इक्वेशंस कितना अवेलेबल है? 3, 2, और फर्स्ट इज योर काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन. Okay, only these 3 equations are available to you.
वेरिएबल्स कितने फाइंड करने हैं? 4 variables and 3 equations. Using 3 equations, is it possible to have independent solution for the 4 variables? Answer is no. It's okay. पता चल गया. Finding independent values of these 4 variables v1, v2, theta and phi is not possible using 3 equations. हाँ, एक तरीका है इसका. एक तरीका है. The way is, आप कोई भी एक वेरिएबल इन 4 में से v1, v2, थीटा एंड फाई, ओके, कोई भी एक वेरिएबल आप एक्सपेरिमेंटली बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, इसको रियलिटी में कैरम के ऊपर ही कर लो, चाहे कैरम कॉइन यूज करके, रियलिटी में आप किसी चारों में से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लो. v1, v2, थीटा और फाई में से किसी का भी वैल्यू फाइंड कर लो, तब सिचुएशन इजी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक आपने वेरिएबल फिक्स कर दिया, फिर आपके पास 3 रह गए. यूजिंग 3 इक्वेशंस यू विल बी एबल टू फाइंड द 3 वैल्यूज ऑफ 3 वेरिएबल्स. ठीक है, दैट इज पॉसिबल. कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, ठीक है, यूजिंग एक्सपेरिमेंट फाइंड वन ऑफ दीज वेरिएबल्स. इजी पार्ट रहता है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, इन दोनों एंगल्स में से एक एंगल का वैल्यू फाइंड कर लो, सबसे इजीएस्ट पार्ट है. तो एक एंगल आप लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है. एंगल फाइंड करने के बाद आपके पास अदर 3 वेरिएबल्स यू विल बी एबल टू कैलकुलेट. ठीक है, बट इन दिस सिनेरियो अगर आप थ्योरेटिकली बात करो, जैसा हमने 1 डायमेंशन में फाइंड कर लिया था, इन दिस सिनेरियो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट 4 वेरिएबल्स यूजिंग 3 इक्वेशंस. इट्स फाइन. ठीक है, तो नाउ वी आर टेकिंग अ स्पेशल केस फॉर दिस. ठीक है, सी दैट. सी, आई एम एज्यूमिंग दिस स्पेशल सिचुएशन कि m1 is equal to m, mean both the colliding bodies have equal masses equal to m. ठीक है, now mass m1 is going with velocity u, मतलब u1 का वैल्यू u है, and target body is at rest. Target body at rest mean u2 is equal to 0. It's okay, colliding bodies have equal masses, first thing, and the target body is at rest. इस सिचुएशन के लिए अब हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को थोड़ा सा फर्दर मॉडिफाई करते हैं. लेट अस सी, ये आपका इक्वेशन नंबर 1. ठीक, इसमें प्लेस करेंगे m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, दोनों मासेस इक्वल टू m, और u2 का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0, टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, एंड u1 इज इक्वल टू u. लेट अस सी व्हाट विल बी द आउटकम. करें अप्लाई. m1 इज इक्वल टू m2 इस इक्वेशन में अप्लाई कर रहा हूं. देखो, हाफ गॉन फ्रॉम बोथ साइड, दोनों में से कॉमन आके गया, तो ये बचा अब m, u1 इज इक्वल टू u, m u स्क्वायर, u2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 0 इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर प्लस m v2 स्क्वायर. इट्स ओके, m कॉमन, m यहां से और यहां से कॉमन आके कैंसिल हो गया, एंड वी आर गेटिंग u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. इट्स ओके, इसको ही कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4. इट्स फाइन. ये कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन मॉडिफाई करके फॉर द गिवन स्पेशल केस इज दिस. इट्स ओके, इक्वेशन 1 से हमने ये सिनेरियो डेवलप किया. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 कौन सा है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along x axis, along x axis. See that equation. This is the equation. Yes, m1 u1 m2 u2 this. Now when you will be considering or writing this particular equation for the considered special case, okay, masses are equal, target body at rest. Okay, let us see how this modifies. From equation 2, equation 2,
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला इक्वेशन जो है आपका अलोंग एक्स एक्सिस, m1 u1 m2 u2, तो ये बना m u1 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू m1 v1 m v1 cos theta plus m u v2, this is v2, okay, v2 cos phi, m कॉमन फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये इक्वेशन बन गया आपका u इज इक्वल टू v1 cos थीटा v1 cos थीटा प्लस v2 cos phi, ओके, इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 5. नाउ रीराइटिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला इक्वेशन, दैट इज दिस, ये वाला, फॉर द कंसिडर्ड सिचुएशन क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू m v1 साइन थीटा माइनस m v2 साइन फाई. नाउ रीराइटिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along y axis वाला इक्वेशन फॉर this considered special situation. Okay, 0 m v1, m यहां से कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, and we will be getting 0 is equal to v1 sin of theta minus v2 sin of phi. Equation number 6. Now इक्वेशन 4 में कंसंट्रेट करो, इस वाले इक्वेशन, ठीक है, u स्क्वेयर इज इक्वल टू v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर. ये इक्वेशन नंबर 5 से जो वैल्यू है ना u का, यस, प्लेसिंग दिस वैल्यू ऑफ u फ्रॉम 5 इंटू 4, इट्स ओके, ठीक है, कर दें प्लेस फिर. u स्क्वेयर इज इक्वल टू v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर, इसी को प्लेस कर रहा हूं. देखो u स्क्वेयर, u का वैल्यू इज v1 cos थीटा प्लस v2 cos phi होल स्क्वायर, u स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. इट्स ओके. अब इस स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं. सी, ओपनिंग ब्रैकेट, इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा cos phi इज इक्वल टू v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर. ये आ गया, ठीक. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. नाउ सी, ये v1 v2 वाली साइड पे मैं ये v1 cos स्क्वायर थीटा और v2 दिस, इसको v1 v2 के साइड पे ले आया, ठीक है. तो यहां पे मेरे पास क्या बना, v1 स्क्वायर माइनस v1 cos स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड दिस एंड देन इक्वल टू दिस. यहां पे v1 कॉमन आ जाएगा आपके पास, v1 स्क्वायर विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर phi is equal to 2v1 v2 cos theta cos phi. Now 1 minus cos square theta is sin square theta, तो यहां पे sin square theta बना दिया, v1 square sin square theta plus v2 square sin square phi is equal to 2v1 v2 cos theta cos phi. Now using equation number 6, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 6. इक्वेशन नंबर 6 को यूज करते हैं, कर ले. नेगेटिव साइन है, v1 sin थीटा विल बी इक्वल टू v2 sin phi, यही होगा इक्वेशन 6. ओके, v1 sin of theta is equal to v2 sin of phi. Okay, v1 sin of theta is equal to v2 sin of phi. देखो, in the view of this particular equation,
ये ऊपर वाला इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है इसकी बात कर रहा हूं। इसको रीराइट करूं, सी प्लेसिंग वैल्यूज फ्रॉम दिस v1 साइन थीटा, ओके, साइन थीटा का वैल्यू डाल दो या फिर v2 साइन फाई का वैल्यू डाल दो, जिसका वैल्यू दोनों में से आपको डालना है, ओके। तो मैं डाल रहा हूं वैल्यू v2 साइन फाई का, v2 साइन फाई का वैल्यू बना v1 साइन थीटा, तो ये बना v1 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस v2 साइन फाई होल स्क्वेयर, v2 साइन फाई होल स्क्वेयर विल बी v1 साइन थीटा, v1 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई। ये बन गया अपने पास 2v1 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2v1 v2 cos of theta cos of phi। इट्स ओके। अब यहां हम cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं। देखो इस cos थीटा का, cos थीटा कैन बी रिटन एज, ये सब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2v1 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 2v1 v2 एंड देन cos फाई। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हुआ, सिंगल v1 कैंसिल हुआ, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचा अपने पास, cos थीटा इज इक्वल टू v1 बाय v2 एंड साइन स्क्वेयर थीटा बाय cos फाई। इट्स ओके। ये आपके पास cos थीटा का वैल्यू आ गया। अब देखो अगर मैं, वो एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन cos ऑफ a प्लस बी, ठीक है, मैं लिखता हूं उसको cos ऑफ थीटा प्लस फाई। ओके, तो cos थीटा प्लस फाई कैसे लिखा जाएगा, इसको ओपन करें तो दिस विल बी cos ऑफ थीटा, ओके, देन cos ऑफ फाई माइनस साइन आएगा, ठीक बेटा, साइन ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ फाई, ठीक। नाउ जस्ट कंसंट्रेट इन वैल्यू ऑफ cos थीटा। दिस cos ऑफ थीटा is equal to v1 by v2 sin square theta by cos phi। ठीक है, एक तो ये cos थीटा वाला टर्म मैं यूज करूंगा, और 1 ये आपके पास इक्वेशन 6 है ना, जो ऑलरेडी हम यूज भी कर चुके हैं। इस इक्वेशन 6 से हम वैल्यू निकालेंगे साइन ऑफ फाई का, साइन ऑफ फाई। नाउ साइन ऑफ फाई कैन बी रिटन एज साइन ऑफ फाई फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 साइन ऑफ फाई, देखो ठीक, साइन फाई इज इक्वल टू v1 बाय v2, v1 बाय v2 साइन ऑफ थीटा, ठीक। अब ये वैल्यूज दोनों cos थीटा की और sin फाई की इस आइडेंटिटी में डाल दे। ये जो आइडेंटिटी था ना, इसको मैंने इक्वेशन 7 कह दिया। अब cos थीटा और sin फाई में इसमें डाल रहा हूं, डाल दूं, चलो, cos ऑफ थीटा प्लस फाई, cos ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू cos थीटा का वैल्यू डाल रहे हैं v1 बाय v2 साइन स्क्वेयर थीटा ओवर cos फाई इंटू cos फाई, इट्स ओके, माइनस साइन थीटा एंड साइन फाई, साइन थीटा एज सच, साइन फाई इज v1 बाय v2 साइन ऑफ थीटा।
ठीक बेटा, नाउ इसको प्रोसेस कर दे इक्वेशन को। देखो cos फाई गॉन विद cos फाई, ठीक। अब आपके पास बना v1 बाय v2 साइन स्क्वेयर थीटा माइनस v1 बाय v2 साइन स्क्वेयर थीटा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो गए। What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ कि cos ऑफ थीटा प्लस फाई फॉर द कंसीडर्ड सिचुएशन, क्या है कंसीडर्ड सिचुएशन? कि कोलाइडिंग मासेस आर इक्वल एंड द टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट। cos of theta plus phi is equal to 0. Now cos at what angle is 0? हमें पता है कि cos of 90 डिग्री is equal to 0 होता है। What does it mean? कि theta plus phi is equal to 90 डिग्री। मीन जब इस कंसिडर्ड सिचुएशन में, कंसिडर्ड सिचुएशन क्या है? मास m1 moving with velocity u, m2 at rest, m2 at rest। हमने कहा u2 is equal to 0। दोनों ने कोलाइड किया, दोनों ने कोलाइड किया इलास्टिकली। वन इज गोइंग दिस वे, अनदर इज गोइंग दिस वे। m1 m2, दिस एंगल हमने कहा था थीटा and this angle phi। तो for the considered situation theta plus phi will be equal to 90 डिग्री। मीन जिस डायरेक्शन में आपके ये दोनों ऑब्जेक्ट प्रोसीड करेंगे आफ्टर कोलिजन, एंगल दोनों में कितना होगा? दोनों वेलोसिटीज के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। मीन बोथ विल बी मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो होप कि ये सिचुएशन आपको समझ में आया। अब देखो सिचुएशन तो वैसे इसको करने की भी जरूरत नहीं थी, है ना। यू कैन से कि सर 4 वेरिएबल्स आर देयर, ठीक है ना, और 3 इक्वेशंस है, तो ठीक है, राइटिंग दिस थिंग के 4 वेरिएबल्स कांट बी कैलकुलेटेड यूजिंग 3 इक्वेशंस, काम खत्म कर देते। बट थोड़ा सा थिंग्स को इंटरेस्टिंगली समझने के लिए, एप्लीकेशन में लेके आने के लिए, ओके, आई हैव डन दिस स्पेशल केस। ओके, तो होप यू हैव अंडरस्टूड। स्पेशल केस क्या था कि when the colliding masses they have equal, colliding bodies they have equal masses are equal, target body is at rest, इसने आके इसको हिट किया और दोनों आफ्टर कोलिजन परपेंडिकुलरली चले जा रहे हैं as the relation is। तो hope you have understood this particular thing, and if you find any confusion let me know about, it's okay, ठीक है। Thank you, have a nice day।